You're watching Reality Check. We are coming to you live from Battleground Bihar. Now, a day ago, we played you Tejasvi Yadav's breakout campaign, where the RJD leader, who's traveling at a breakneck pace across the state, appears to be gaining traction as he takes on Nitish Kumar, particularly for Nitish Kumar's track record when it comes to creating jobs. Now, this has led to an impression in some quarters that Tejasvi Yadav is actually threatening the certainty of an NDA victory. And while Nitish Kumar certainly does appear vulnerable, what this theory omits is the BJP factor in this election. Remember that the BJP is also fighting the same number of seats as the JDU. And unlike Nitish Kumar, their face in Bihar is Narendra Modi, who continues to remain popular amongst voters. Just look at the BJP's own track record in Bihar. Their vote share has been steadily rising, has in fact now emerged as one of the highest amongst all parties in the state. Similarly, their strike rate is extremely good. It hit 90% the last time that the JDU and the BJP fought together. With this kind of combination comes a new factor, where the Prime Minister is increasingly, and the BJP in fact as a whole, is resorting to the politics of Hindutva, to the politics of sectarian appeals. Let's listen to what the Prime Minister said recently when he invoked the Tukde Tukde gang to smear the opposition. अब तो इस चुनाव में जंगल राज वालों के साथ नक्सलवाद के समर्थक देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वालों के समर्थक वे भी बढ़ चढ़ करके बारात में जुड़ गए हैं। अब अगर इनको जरा भी मौका मिल गया तो बिहार वापस उस हिंसा, अराजकता, अपहरण के उस खतरनाक दौर में फिर से पहुंच जाए। This is what some analysts call Moditva, a combination of Mr. Modi's star power, of Hindutva appeals to the voters, and also invoking the Vikas agenda of the BJP. Is this going to slow down the Tejasvi surge? We travelled to North Bihar, to Darbhanga, where Sushil Kumar Modi, the BJP's Deputy Chief Minister, was campaigning for a BJP candidate to find out. The BJP's Deputy Chief Minister descends on the Jale Vidhan Sabha seat in Darbhanga. So Sushil Kumar Modi has come to this seat, this Jale seat. This is one of the only two seats in Darbhanga district in North Bihar which has been won by the BJP because of the strong presence of the upper caste here. Strong presence of upper caste and Muslims, that gives it that sort of polarization which the BJP thrives on. Mr. Sushil Kumar Modi is here to campaign for the BJP's sitting candidate, Jibesh Kumar, against the Congress's Maskur Usmani, a former student leader of Aligarh Muslim University. Before Sushil Modi arrived, the BJP's warm-up speakers target Usmani repeatedly, even calling him Jinnah ka Munna. धर्म की लड़ाई है, इसलिए आप सभी लोग से प्रार्थना है कि यहाँ पे जिन्ना को मुन्ना को उखाड़ के फेंक देना है। ये ललित नारायण मिश्रा जी की कांग्रेस जो आज जिन्ना की कांग्रेस हो गई है और जिन्नावादी को टिकट देकर जाले के लोगों को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। Sushil Modi himself, a BJP moderate, for the most part stuck to script, focusing on Bijli Pani. यहाँ हर घर तक बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा बताइए। हर घर तक पहुंच गया और कितने घंटे बिजली है? 12 घंटे 14 घंटे बिजली है? ये कह रहे हैं कि 22 घंटा बिजली है। तो कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लीजिए बिहार और मिथिला के बहनों और भाइयों, अगला 1 साल बीतेगा नहीं, बिहार के घर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचा कर दिखलाएंगे। 3 साल के बाद
मिथिलांचल के लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। एम्स दिल्ली से उठकर दरभंगा चला आएगा और आपका वही इलाज का इंतजाम होगा। But in the end comes this. अगर हिम्मत हो तो कांग्रेस का उम्मीदवार कहे कि 3 तलाक को खत्म करके नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक काम किया। क्या आज के जमाने में कोई मर्द खड़े होकर किसी औरत को 3 तलाक बोल देगा और घर से बाहर हो जाएगी लड़की? अगर हिम्मत है तो 3 तलाक का विरोध करके दिखलाओ। अगर हिम्मत है तो अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसमें चंदा देकर भव्य राम मंदिर बनवाने में मदद करने का ऐलान करो, तब समझेंगे तुम सेकुलर हो। This on a day when the Prime Minister in another part of North Bihar taunted his opponents on Jai Shri Ram. वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। So we are with Sushil Kumar Modi, senior leader of the BJP, and also just came to campaign here in Darbhanga. Sushil ji, thank you so much for talking to us. Now, of course, you spoke of Bijli, Pani and all that. But given the fact that the Congress has fielded a Muslim candidate here, are you all guilty of bringing Hindutva in when you said that he should support the Ram Mandir, he should donate to the Ram Mandir? I have not mentioned a single word about Hindutva. I've only mentioned about the developmental issues. And see, there is a strong wave in favor of NDA in Bihar. But you did For say the that he last should 5 donate days- for Ram Mandir. No, Ram Mandir naturally, because Supreme Court has given decision. It is not the decision of the central government. Supreme Court has given a decision in favor of building a Ram temple. Right. That's why I raised this issue in the last para of my speech. But before it- 90% of my speech Yes. was Sadak, Bijli, Pani, AIMS and other developmental works. Before you came, all the work, sort of pre-speakers, they all said, someone said Jinnah ka Munna, someone said Congress Jinnahwadi party. That's all they were saying. I will not comment on those issues because I was not there. What they were speaking, what is the local context. But the local candidate, it does not have a good background. A few miles away in the Ratanpur village of the same seat, a group of upper caste voters, Bhumihars, staunch loyalists of the BJP, gather at the chowk. आप कह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी है बस पूरा पूरे का पूरा 99% बीजेपी ही है। बीजेपी है। जो लड़का लोग कुछ घूम रहा है इधर उधर अभी चुनाव तक खाने पीने के लिए घूम रहा है, रात में सब सिस्टम में आ जाएगा सब माने वोट के दिन आते आते बुझिए उस सब लाइन पकड़ लेगा। क्या कह रहे थे आप? क्या टीकी और टोपी टीकी और टोपी हाँ उसका टीकी और टोपी कैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। अच्छा, ठीक है हाँ हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। अच्छा, यहाँ मुस्लिम काफी ज्यादा है इसीलिए। नहीं ज्यादा कहाँ से आएगा। अच्छा, तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों होगा? अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है पहचानता नहीं है उसको पार्टी जो है उसको थोप के टिकट दे देता है। अब कोई है कहाँ है वो शाहीन बाग वाला है वो जिन्नावादी सब है उस सब को दे देता है तो अच्छा, कैसे आप होगा? कह रहे हैं कि जो यहाँ के कैंडिडेट हैं कांग्रेस के वो मुस्लिम हैं। मुस्लिम नहीं, मुस्लिम चेहरा भी अगर लोकल रहता तो कुछ उस पर असर भी होता, ये कोई लेकिन बाहर से जिसको लेके आए हैं? अब बाहर से थोप दिया जाता है। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं हाँ। टीका टोपी, हाँ, मतलब हाँ, टीका हाँ। जो हिंदू और हाँ, टोपी हाँ, मुस्लिम। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं हाँ। मोदी जी को दे जी मोदी आप बताइए क्यों मोदी जी सही काम करते हैं इसलिए उनका यहाँ जो जीवेश है कैंडिडेट उनका अच्छा काम कर रहा है। जो बीजेपी का कैंडिडेट है जो यहाँ सिटिंग भी हैं हाँ। जीत चुके हैं उन्हीं वही। अच्छा, लेकिन नीतीश को नहीं। नहीं नीतीश को नहीं। नहीं, नीतीश को आप कैसे मानेंगे एज अ सीएम? अच्छे हैं, फेल हैं, कैसे? फेल है फेल पूरा है। फेल हाँ। क्यों? क्या आपके सबसे आप तो युवा हैं? युवा इसको नौकरी नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। आप क्या पढ़े हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन किए हैं, नहीं मिल रहे हैं। नहीं
There is disquiet against Nitish Kumar, but it appears to have been overcome by Hindutva and by Modi Bhakti. क्या चुनाव में लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, क्या वजह है उसकी? क्यों बीजेपी? अच्छा काम करता है। कौन? नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी है बस। नरेंद्र मोदी पे पड़ रहा है। अच्छा, बट नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका पार्टी है ना। इसीलिए सरकार तो नीतीश की बनेगी, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब मिली जुली सरकार। कोई गारंटी तो नहीं नीतीश बन जाएगा। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। नहीं, ज्यादा दिन कुर्सी के बाद उसका घमंडी हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, हो सकता है बदली हो जाए। नीतीश कैसे लगे आपको मुख्यमंत्री? ठीक थे, गलत? क्या ठीक थे, 2 साइड से कमी। बिहार में दारू बंद किया, घर घर बिक्री हो गया साला। अपना राजस्व दूसरे जगह जा रहा है, मैंने हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, वहाँ का दारू आता है, यहाँ आदमी पी रहा है। इस सब में गड़बड़ी किया है, नहीं तो टनाटन था। दारूबंदी नहीं करना था? नहीं, पैसा ना आ रहा था। दारू बंद कहाँ है? दारू तो चालू है। अच्छा, दारू चालू है। हाँ, खुला। अभी हम नशे में है कि नहीं है? नीतीश कुमार सब तो नशे में है, मन जैसे भी है तो। In the Dalit basti of the village, the criticism of Nitish is more muted. There is praise for his schemes, central and state. आप भी भाजपा के जो हैं? अच्छा, उसकी क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, अपना दिल की बात है। अच्छा, क्या काम किए हैं उन्होंने? काम किए हैं ये है, सड़क पानी यही सब ज्यादा किए हैं कि और क्या करेंगे। सड़क पानी किए हैं, जी शौचालय दिए हैं, नल जल भी लगाए हैं। घर घर गैस दे दिलकै, बिजली देले है, शौचालय दिलकै है, सबके राशन वितरण होइ छै, आ दाल भेटलै है, चना भेटलै है फ्री में लॉकडाउन में। भूख से मरै छी, इनको नहीं मिला। नहीं मिला ना, मरल नहीं मिला, इस महीने में नहीं मिला। नहीं, ये कह रही हैं आप? हाँ, अब बेटो टूगर, हमू टूगर, बेटो क्या भागल है, अब कोई अवस्था नहीं हमरा, न खेत न पथा। But here too, the mingling of Hindutva and Modi Bhakti. तो यहाँ क्या मतलब आप क्या सोचे हैं चुनाव में? कौन? हम लोग तो नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी को देंगे। अच्छा, क्या वजह है उसकी? वजह यह है कि हम लोग वैष्णवाद में है, राम मंदिर को जो सैकड़ों बरस से जो बुरा हुआ था, मुसलमान लोग ध्वस्त किए हुआ था, उसको उजागर किया है जी। इसीलिए हम लोग उनको दे रहे हैं, देने का प्रतिज्ञा किए हुए हैं। हिंदू धर्म हिंदू का न होगा, हिंदू धर्म है तो हिंदू का होगा कि मुसलमान का कोई होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होता है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ वोट हिंदू धर्म के उस आधार पे पड़ रहा है? हाँ, वोट मोदी के पड़ता है, मोदी के जीवे क्या? हाँ। Will Moditva, that striking blend of Hindutva and promise of Vikas, paper over the BJP's vulnerabilities, especially on Nitish Kumar's record on creating jobs? Are you vulnerable on joblessness? He's made that his main motto. Are you worried about unemployment? This is not an issue in Bihar. Not an issue? It is not an issue. Or from 1952, each and every election. Mahanga is always an issue, joblessness is an issue, but people are not going to vote on the issue of Berojgari. But you promised, you promised 19 lakh jobs. That's another thing. Making promises is another thing, but people are not going to vote on the issue of Berojgari. आप कितने भी लोगों को रोजगार देंगे तो भी 80% लोग तो बेरोजगार रहेंगे। Are you going to give job to each and everybody? Is it possible? और एक बात और बता दें। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने खुद 19 लाख जॉब प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस क्या मैं करूँगा? I have not promised in the first cabinet meeting we will provide government jobs. Right. And Mr. Srinivasan, you must know. Yes. By end of December, Bihar will not be able to pay even the salary of the regular government employees. For the last 7 months, there is a revenue shortfall of more than 30%. So where we are going to pay salary to the 14 lakh already employed people, we have to take loan. But after the rally, as we talk to those in the crowds, jobs is the one issue which triggers friction. कैसा लगा भाषण? क्या लग रहा है यहाँ पर सरकार किसकी बनेगी? हमें कहता लग रहा है कि जैसे सुशील कुमार मोदी जी ने जो भाषण दिए हैं वो बहुत ही अच्छा भाषण दिए हैं। अच्छा। और जो है से मोदी जी का सरकार जो है से इस बार जो है से डिफिनिट है बनेगी ही। मोदी जी मतलब मोदी जी तो नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार मतलब कमल खिलेगा ही। कमल खिलेगा। तो यहाँ पर आप सब ऐसे भाजपा समर्थक हैं?
ज्यादातर नहीं, हम सब वोटर हैं? वोटर हैं, वोटर हैं, लेकिन आप हमेशा भाजपा के साथ ही रहे हैं। जी जी हम लोग साथ रहे हैं। आप सर हिला रहे हैं, आप नहीं हैं? जी नहीं, आप किनके साथ हैं? लालू यादव के साथ। लालू यादव के साथ जी हैं? ललटेन अच्छा, तेजस्वी जी। क्यों आप भाजपा समर्थक क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि देखिए इतना जो लॉकडाउन हुआ, इतने गरीब लोग आए, मरे। अभी जो है मुंगेर में गोली चलवाया गया नीतीश कुमार के थ्रू, जो दुर्गा पूजा में। तो ये सब जो है सो समझिए कि जुमलेबाजी है। ये कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, न कोई रोजगार है। अभी 10 लाख तेजस्वी जी नौकरी के लिए अनाउंसमेंट किए, नीतीश कुमार जी बोले कि नौकरी कहाँ से देंगे, और तभी बीजेपी के लोग बोले कि 19 लाख नौकरी हम देंगे। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी में फिसड्डी है। बेरोजगार है कौन? मैं उस बेरोजगारों से पूछना चाहता, बेरोजगार है कौन? आप यहीं से पूछ लीजिए, कोई बेरोजगार है यहाँ? पढ़ा कुछ नहीं है, उसको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। जो तेजस्वी यादव 10 लाख आदमी को चोर बनाना चाहता है ये सरकार, तेजस्वी सरकार 10 लाख आदमी को चोर बनाना चाहता है। एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कुछ नहीं किए हैं, उसमें एकदम फेल्योर है। नीतीश सरकार पूरा फेल्योर है इस टॉपिक पे कि रोजगार वाले टॉपिक पे, सरकारी नौकरी वाले पे। With camera person Xavier Thomas, Srinivasan Jain for NDTV.